Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to continue with the chapter number 6 of unit number 3 of class 11th economics, and the part which we are covering is the Indian economic development. Till the last video, we are done with so many basic concepts of this chapter. So, let us have a quick recap about the basic concepts so that you can conveniently understand the concept which we are going to cover in this lecture. Now, what was the simple meaning of rural development? Rural development was nothing but the upliftment of the status of the people living in the rural areas by providing them the services which are available in the urban areas, like good health services, good educational services, good administrative services, so that they can build their good human capital and acquire some latest skills with the latest technology. So such kind of stuff is concerned about only one thing, that is the upliftment of the weaker section of the society which is living in the rural areas, and that is all about the rural development. After that, we discussed about the key issues, what are the basic problems which are associated with the rural development. Okay, now what we are going to cover is the key issues. Let us open the file again, guys. What were the key issues? Let us revise by here only. The key issues were like the development of infrastructure, and we are here again. Yeah. Now our pen is working. Okay. So here we are with our chapter. So what are the key issues? The development of human resources. This is a very big issue. The human resource is extremely weak in the rural areas. People are not that much educated. People doesn't acquire good skills because of lack of capital and other things. That is why we can say that the human resource is not very much nourished. Human resource कोई बहुत अच्छा नहीं है रूरल एरियाज में. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स. आज भी हमारे रूरल एरियाज में लैंड एक बहुत बड़ा इशू है. जो लैंडलेस लेबर्स है वो बेचारे डिप्राइव ही रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ. दे डोंट हैव access to the good education, good health because of the lack of money, and the standard of living they are having since a very long time, just because this thing that they don't acquire a land, they don't own a land. Then third one was the development of infrastructure. Good infrastructure means again electricity, irrigation facilities, banking facilities, transportation, communication, internet. Such kind of stuff is still missing in the rural areas at an efficient level. So this is again a very big cause behind the rural one of the basic problem or barriers between the rural development, that they doesn't have good infrastructure. The next is alleviation of poverty. Poverty alleviation means that we focus to alleviate poverty, but the fact is this, that the level of poverty is keep on increasing. And one of the basic cause behind that is the increasing rate of population. The population is continuously keep on increasing, because of which the poor population is again in turn increasing.
Because the per head availability of the goods and services, of resources, of infrastructure facilities and other stuff, it decreases when the population increases. So such kind of things provokes poverty. It helps poor people to, means it doesn't help poor people to come up with their poverty. Now, fifth point is development of the productive resources of each locality. So, what the productive resources they have, which in turn can provide them employment, which can leads to providing help in further economic activities so that they can earn high income. So it is also missing in those areas. Then next was the rural credit. What is the meaning of rural credit? Guys, rural credit was all about giving options to the people who are living in the rural areas. The areas from where they can borrow some funds, take some money. Especially in the rural areas, if we talk about the rural credit, there are two categories. Number one is the institutional resources, source of credit, and the second one is the non-institutional, means the informal source of credit, you can say. So the source of credit which they have, basically, as you can see on the screen, institutional and non-institutional. So what was the institutional one? Institutional means the formal sector of credit. It is basically that sector which is registered with the government. All those sources of credit which comes under formal sector, the basic thing is this, that they are registered with government. They follows norms and conditions of government. And the most important thing, that if anything goes wrong, if anything went wrong with you, such kind means some kind of fraud or something like that. If anything happened wrong with you, then there is some scope to raise your voice, to file a case against them, because that company is a registered company. Everything was on the official papers, means proper paperwork was done. So in the case of formal credit, a lot of security is there. Now that formal credit system is increasing rapidly in the rural areas. In urban areas, it is no doubt, it is the most popular one. People prefer to take loans from the commercial bank and other cooperative societies instead of taking money from any other informal source, because everything is done on papers. Now the thing is this, that since we have the formal sector, still people go with the non-institutional, means the informal sector, especially in the rural areas. We'll talk about that thing later, but let us talk about the sources of formal credit. The first one was the cooperative credit societies. Means a small bank, very small bank, which doesn't have a huge lending capacity, like in multiple lakhs on multiple crores.
but such cooperative societies, credit cooperative societies, does play a very major role, especially now in the rural areas, that small cooperative societies are there, which are usually built by the member of Gram Panchayats, the loyal, or you can say very, that money lender, or a combination, means multiple money lenders unite with each other to form a small credit cooperative society so that they can lend money to a wide area. But to build a cooperative society, they have to register themselves with the government. So you can see that they have become bounded in the norms of the government, and they have to follow them, because now the borrower has the power to case a file against them. Second is the land development banks. Land development banks come up with the papers of your land, will provide you the long-term goal. So land development banks is all about providing long-term loans in against of your land. Means they'll keep your land as collateral, उसे गिरवी की तरह रखेंगे और आगे उसके बदले में आपको लॉन्ग टर्म के लिए देंगे लोन. तीसरा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट. Commercial bank credit. Commercial banks are basically those banks who accept deposit and grant loans in order to earn profit, in order to make profit. So commercial banks are playing a very, very major role, especially in the cities. I would not say in the rural areas, because you'll hardly find any commercial bank in the rural areas, because these commercial banks works to make money, and rural areas does not provide good opportunities to earn money. If you are living in an urban area of India, you will experience this thing that you are surrounded with so many commercial banks. On a single road, you will find 5, 6, 7, 8 commercial banks. In a single area, you will find so many branches of a single bank. Means when it comes to opening an account in the commercial bank, you will get confused that where should I open my account and where should I not. You have plenty much option now, but this thing is not there in the rural areas. People doesn't find so many options. They hardly have one account one bank in the whole village. So commercial bank credit is again a basic source of credit, especially the formal source of credit. I should use the term formal source of credit. Third is regional rural banks. Now what are regional rural banks? Means regional rural banks are basically developed to nourish that particular rural area by providing credits to the needy. That is the basic agenda of the regional rural banks. As I told you in the last video only, that regional rural banks are concerned about their particular rural area where they are situated. They make their own personal policies as per the requirement of that rural area. I hope you remember the example I have given you in the last lecture. That suppose there are two villages, one in the very deprived area, a drought prone area in the Rajasthan,
and there is one a well-nourished village in the Shillong, in the northeast of India. So one is in the northwest and one is in the northeast. The condition of both the villages are extremely different. On one side, the one village doesn't have a good crop from the last 2 years, and from the last 2 years, that northeast village from the Shillong, is getting very good crops. Farmers are earning really very well. So जो राजस्थान वाला गांव है, उस गांव का रीजनल रूरल बैंक कैसी पॉलिसीज बनाएगा? ऐसी जिसमें फार्मर्स को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, शायद बिना किसी कोलेट्रल के लोन मिल जाए. क्यों? क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल अलग है. वहां पर पैसा ज्यादा देना है, और उधर नॉर्थ ईस्ट वाले विलेज में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाए, कोलेट्रल भी चार्ज किया जाए. क्यों? क्योंकि वहां पे फार्मर्स की पेइंग कैपेसिटी है, दे आर अर्निंग वेल. सिंपल. देन फिफ्थ इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. क्या होते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? गाइस, in fact I told you about this only in the last lecture, that self help groups are basically like a small committee. This is the construction of a very tiny small bank constructed by a bunch of people. थोड़े बहुत लोग, 5, 7, 8, 10, 12, 15 लोग एक छोटे सा अपना एसएचजी बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जिसे भाई कि पॉपुलरली कमेटी सिस्टम बोला जाता है, जिसमें अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो एसएचजी आपको प्रोवाइड कराती है. और इस सिस्टम में, एसएचजी में जो भी मेंबर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर स्पैन के बाद, एक पीरियड के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करवाना पड़ता है, और वही आपको इस चीज की पावर देता है कि आप आगे वहां से लोन ले सकते हैं, वो भी एक बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. देन लास्ट वाज द नाबार्ड. नाबार्ड क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. काम क्या था नाबार्ड का? नाबार्ड का काम यह था कि आरबीआई डायरेक्टली रीजनल रूरल बैंक्स या रूरल एरियाज में ऑपरेट करने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डायरेक्टली मॉनिटर नहीं कर सकता. इंडिया बहुत बड़ा है, तो आरबीआई ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई जिसका नाम रखा नाबार्ड, जिसका मेन काम ही यही है कि वो सुपरवाइज करेगा सारे रीजनल रूरल बैंक्स को, सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और उनके लिए बनाएगा पॉलिसीज, उनके लिए काम करेगा. तो यू कैन से दैट नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी which coordinates the regional rural banks, the credit cooperative societies, and other banks which are operating in the rural areas, which are specifically targeting the rural areas and the farmers. मैं एक बात बता दूं, नाबार्ड डायरेक्टली पब्लिक को लोन नहीं देता. आप नाबार्ड के पास डिपॉजिट नहीं करवा सकते. जैसे हम लोग आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, हम आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं करवा सकते. आरबीआई नाम में बैंक आता है, लेकिन उसका काम अलग है, वो आपके बैंक्स को सुपरवाइज करता है. इसी तरीके से नाबार्ड भी रूरल एरियाज में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको मॉनिटर और उनको सुपरवाइज करने का काम करता है. ये है बेसिकली नाबार्ड का काम. जो कि इंडिया के फॉर्मल रूरल क्रेडिट की एपेक्स बॉडी है. यानी कि जो भी फॉर्मली रूरल एरियाज में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी ये एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम अथॉरिटी है.
चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर पे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या है? गाइस, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं फर्स्ट विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सरकार को जिनके बारे में नॉलेज नहीं है कि हां ऐसे भी कोई है जो लोन देते हैं, और ऐसी किसी जगह से लोन लेने का मतलब अगर समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ अगर गलत हो गया, सम काइंड ऑफ फ्रॉड हैपेंड, somebody ran away with your money, then you can not seek any kind of help from anywhere, because again almost no paperwork is done in such kind of sources. Everything is verbal, which is not authenticated at all. So informal sector is just a casual way to borrow money, very casual way. Examples like you are borrowing money from your relatives, from your friends, from your neighbors, from your boss. So this is non-institutional sources. Please take a look at the definition, guys. These are the traditional sources of credit in India. These sources include money lenders, relatives, traders, landlords, friends, etc. तो ये सब इसमें आ जाते हैं. Out of all the above sources, money lenders have been advancing a major share of rural credit. Money lenders have been advancing a major share of rural credit requirements. वही कि यूजुअली विलेजेस में जो कन्वेंशनल मनी लेंडर्स हैं यानी कि जमींदार्स और महाजन्स, वही ज्यादातर लोगों की मनी डिमांड को पूरा करते हैं. They advance nearly 94% of total credit requirement in the year 1951-52. यानी कि लगभग 94%, 100 में से 100% जितना क्रेडिट जाता था, 94% कहां से आता था? इस इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से. केवल 6% लोग ही बैंक्स से पैसा लिया करते थे. मेजर प्रॉब्लम्स in taking loans from money lenders are, मनी लेंडर से पैसा लेने में दिक्कत कहां पर है? दिक्कत पहली, they charge very high rates of interest and thus exploit farmers. बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पेशली रूरल पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं. They acquire land on failure to pay back the loan. तो अगर कोई समय पर अपना लोन ना दे पाए तो इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी वो उसकी जमीन ही एक्वायर कर लेते थे, जमीन ही उनकी हड़प लेते थे. जबकि अगर आप किसी बैंक से के डिफॉल्टर बनते हो तो बैंक आपको काफी अल्टीमेटम्स देता है, आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है, ना कि आपकी जमीन जब्त कर लेता है. वो एक्शन लिया जाता है लेकिन काफी टाइम के बाद, लेकिन यहां पर फर्स्ट मोमेंट पे ही. लास्ट, दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स. वो अपने मन चाहे तरीके से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं. आपने आज अपनी एक इंस्टॉलमेंट पे करी, अगले महीने पता लगा कि लास्ट महीने आपने कोई इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं करी. वो बोलते हैं कि हमारे पास पेपर्स में ऐसा कुछ है ही नहीं. सो दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स. जैसा उनका मन करता है वैसे उसे मैनिपुलेट करते हैं. देन नेक्स्ट, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स प्रोवाइड एडवांस क्रेडिट टू द फार्मर्स ऑन द मोर्टगेज ऑफ क्रॉप्स. तो ये मोर्टगेज पर ही लोन देते हैं.
बड़े ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स। द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग लोन्स फ्रॉम ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आर, क्या दिक्कत है इन लोगों से लोन लेने में? पहला वही, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, दे फोर्स फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू देम एट लो प्राइसेस। फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो सस्ते दाम पर अपनी क्रॉप्स को बेचे, अपने आउटपुट को बेचे, अपने आउटकम को बेचे, और अल्टीमेटली उससे गरीब लोगों का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रांटिंग रूरल क्रेडिट। लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जिसे बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई क्रेडिट की रूरल एरियाज में। लेकिन इन लैंडलॉर्ड से पैसा लेने में भी बहुत दिक्कत। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स आर, पहला बड़ी कॉमन, लैंडलॉर्ड चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बड़ा महंगा लोन देते हैं। दूसरा, सेम चीज, दे एक्सप्लॉइट स्मॉल फार्मर्स बाय मैनिपुलेटिंग दी अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। देन लास्ट, relatives to play an important role in granting credit to the farmers। रिलेटिव्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज में। लोग अपने रिलेटिव से पैसा लेते हैं। दे नॉर्मली कैरी नो इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटर्न्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन प्रोवाइडर और आफ्टर दी हार्वेस्ट। सो बिना किसी इंटरेस्ट के यहां पर लोन दिया जाता है, और यूजुअली वही कि कोई पेपर वर्क नहीं होता जिससे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बहुत सारी मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। कोई रिलेटिव को पैसा दिया, वो रिलेटिव पैसा लेके चला गया, या उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ जाती हैं। तो ये थे गाइज आपके सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। क्या है ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम? अगर मैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करूं तो फार्म, जहां पर सारी खेती हो रही है, से लेकर आपके किचन तक, सब्जियां फार्म में होगी, यूज उनको किचन में किया गया। फार्म से लेके किचन के बीच में कितने सारे लोगों की चेन होगी जिन्होंने उस चीज को आपके किचन तक लाने में बहुत हेल्प की। यही है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो इस पूरी प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। मेन बात यह आती है इसको पढ़ने की कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या लूप्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ये बात आपने देखी है कि हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मीडिएटर्स काफी हैं, जो फार्मर्स से बहुत कम दाम पर खरीदते हैं, कंज्यूमर्स को बहुत महंगे दाम पे बेचते हैं। बहुत सस्ते दाम पर फार्मर्स से खरीदते हैं और बहुत महंगे दाम पर कंज्यूमर को बेचते हैं, और इनके बीच का सारा गैप मीडिएटर्स का अपना प्रॉफिट मार्जिन, जो वो बीच में खा जाते हैं। तो जरा बात करते हैं हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले
इंडियन फार्मर्स वर कन्फाइंड टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग, छोटे लेवल की. दे सोल्ड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस टू पे ऑल डेब्ट्स एंड मीट सम अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंजम्पशन. तो वो अपनी प्रोडक्शन का ज्यादा बड़ा हिस्सा अपनी सेल्फ कंजम्पशन में लगाते थे और थोड़ा ही हिस्सा वो बेच पाते थे ताकि वो अपने पुराने कर्जे चुका सके. They were forced to sell their produce at low prices as they had weak bargaining power. उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो कम दामों पर अपनी इस प्रोडक्शन को बेचें, आउटपुट को बेचें. क्यों? क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी अच्छी नहीं थी. और भी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें कम दाम पर अपने क्रॉप्स बेचने पड़ते थे. दे डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिवेलिंग प्राइस. ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि मार्केट में दाम क्या चल रहा है. क्यों नहीं होती थी? कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. आज की डेट में हमारे पास मोबाइल फोन है. मोबाइल फोन भी कब आया? 2000 के बाद आया. उससे पहले लैंडलाइंस हुआ करते थे, वायर वाले फोन्स. बट वो वायर वाले फोन्स भी विलेजेस में उतने ज्यादा कैजुअल नहीं थे. सबके पास नहीं होता था, सब अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिस पर ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा पाती थी. फार्मर्स को मार्केट में चल रहे रेट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होती थी. तो अंदाजे से जिसने जो दे दिया वो एक्सेप्ट कर लिया जाता था. They also did not have the proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price. उनके पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है जिससे वो अपने उस प्रोडक्शन को कहीं सेव करके रख सके ताकि कल को जब अच्छा दाम मिलेगा तब उसे बेच पाए. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स का कैसे चलता है कि आज उन्होंने अपनी क्रॉप्स काटी, काटने के बाद उसको अपने ही फार्म पे वो रख देते हैं. वहीं पर कोई बड़ा ट्रेडर आता है अपना ट्रक लेकर और उसी में उसको लोड करके खरीद के ले जाता है. लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि वो ट्रेडर बहुत ही कम दाम पर उस फार्मर की क्रॉप को परचेज कर लेता है और फार्मर भी कम दाम पे दे देता है. क्यों? क्योंकि फार्मर को उसको कहीं रखने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है. ट्रेडर इसी चीज का फायदा उठाता है और कम दाम पर उनसे क्रॉप परचेज करके चला जाता है. अल्टीमेटली इस पूरे केस में लूप किस चीज का है कि काश फार्मर के पास एक वेयर हाउस होता या गवर्नमेंट एक वेयर हाउस में स्पेस अलॉट कराती जहां पर वो अपने उस आउटपुट को रख पाता, इंतजार कर पाता कि वो मार्केट में जाके रेट को पता करे और सही दाम पर अपनी उस प्रोडक्शन को बेचे. इवन दोज हु कुड टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट्स डिड हैव द लिटिल नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. कि अगर कोई अपना सामान लेके मार्केट में पहुंच भी जाता है तो उसे मार्केट के बारे में सब कुछ पता नहीं होता. मार्केट के जो कुछ बातें हैं वो पता नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर भी इसके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल दिस रिक्वायर्ड एन इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम, इन दिस मार्केटिंग सिस्टम. तो इससे यही बात पता चलती है कि ये हमारे एक सिस्टम का फेलियर है जिसमें इंप्रूवमेंट और होनी चाहिए. नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है? वी नीडेड सम मैकेनिज्म थ्रू विच प्रोड्यूस्ड गुड्स कुड रीच डिफरेंट प्लेसेस. तो हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है कि जो प्रोडक्शन हुई है वो अलग अलग जगहों पे पहुंच सके, कम वक्त पे
और सही दाम पे। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, दिस इज द डेफिनेशन गाइस, दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग and distribution of different agriculture commodities across the country। तो ये सिर्फ assembling, storage processing, transportation, packaging, grading, distribution of different commodities across the country, इसके बारे में है। Through this system, the farmers can sell their surplus at fair prices in the wholesale market, कि इसके थ्रू फार्मर्स सही दाम पे अपने सरप्लस स्टॉक यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो बच गया उसे सही दाम पर बेच सकते हैं। वेरियस मार्केट चैनल्स एग्जिस्ट which help the farmers to sell their produce at reasonable prices in the market। तो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स अब बन चुके हैं, प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, जहां पर वो रीजनेबल प्राइस पर अपने इस सामान को बेच सकते हैं। नाउ व्हाट आर द मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम? क्या है सरकार की अलग अलग नीतियां जो उन्होंने अभी बिल्ड करी हैं ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारा जा सके? आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट इनिशिएटेड द फॉलोइंग मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कि इंडिपेंडेंस के बाद इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारा जा सके। क्या है जरा वो देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट के क्या रेगुलेशन लगाए गए? दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस बाय enlarge this policy benefited farmers as well as consumers। So अगर ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग सिस्टम होगा तो वो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को बेनिफिट करेगा। दिस मेजर्स टारगेट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट in order to protect the farmers from exploitation by the brokers। तो ये कहीं ना कहीं फार्मर्स को बचाएगा एक्सप्लॉयटेशन से। जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों का वेलफेयर करेगा। द मार्केट कमेटीज एंश्योर्स दैट द फार्मर्स गेट रीजनेबल प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। अब यही कमेटी एंश्योर करती है कि हां फार्मर को बिल्कुल ठीक दाम मिले। हाउएवर देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप अबाउट 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केटिंग। ये आज भी बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, जिसमें आज भी ये सारी चीजों को अप्लाई होना ड्यू है, बाकी है, जहां पर आज भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के राइट सेफ नहीं है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है और जितना उनको मिलना चाहिए फार्मर्स को और जितना कंज्यूमर से चार्ज करना चाहिए वो दोनों एफिशिएंट नहीं है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा लूप है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं अपने एग्जांपल में बता रहा था कि काश फार्मर्स के पास अच्छा वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो,
बैंकिंग फैसिलिटीज हो, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, तो उससे उसकी अर्निंग्स कई गुना बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहलाएगा। दिस इज नथिंग बट द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी नीड टू फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली on these kind of things, in order to make farmers safe and to enhance their standard of living. This measure attempt to make provision of physical infrastructure facilities like roads, railways, warehouses, godowns, cold storages and processing units. तो इन सारी चीजों की जरूरत है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जो फार्मर्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दीज फैसिलिटीज विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द मार्केट चैनल्स, ये पूरे मार्केट चैनल्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। हाउएवर, द करंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट, कि आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वी नीड टू डेवलप मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू एंश्योर हाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, कि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है ताकि हम एंश्योर कर सके हमारी इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ रेट। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। क्या होती है ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग? गाइस, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या है कि सब मिलजुल के मार्केटिंग करें। एक गांव में बहुत सारे फार्मर्स हैं, अलग अलग काम करने की बजाय वो सब आपस में मिले। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में बताया कि कैसे एक ट्रेडर, एक होलसेल ट्रेडर आके फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता है कि तुम्हारे पास तो सामान रखने की जगह ही नहीं है, और जिस चीज की वजह से वो बड़े कम दाम पर उसे खरीद लेता है कि आप अपनी फसल काट के रखो, मैं उसी मोमेंट आऊंगा और वो खरीद के ले जाऊंगा, कैश पेमेंट दे दूंगा। लेकिन वो जो पर केजी रेट देता है वो मार्केट से काफी कम होता है, क्योंकि फार्मर को उसमें कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, सारा स्ट्रगल उस ट्रेडर ने किया। अब इस सिनारियो में अगर उस फार्मर जैसे गांव में जो दूसरे फार्मर्स हैं, ये सारे अगर आपस में मिल जाएं, कि मान लीजिए गांव के अंदर टोटल 20 फार्मर्स हैं, सब अपने अलग अलग लैंड पे फार्मिंग करते हैं, वो लोग आपस में एक टीम बनाएं और यूनाइट होके एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करें कि अगर हम 20 हैं तो 20 में से 15 लोगों का काम है खाली फार्मिंग करना, बाकी के 5 लोग स्पेयर बच गए। जो 5 लोग स्पेयर बचे हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट देना। लाइक एक का काम क्या होगा, आप वेयर हाउस संभालोगे, वेयर हाउस में सारा रिकॉर्ड रखोगे स्टॉक का। दूसरा, आप सारा अकाउंट्स मैनेज करोगे कि कितने का सामान आया, कितने का सामान गया। एक का काम क्या रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का, कि तुम्हारा काम है वेयर हाउस, फार्म से वेयर हाउस से मार्केट सामान लाना ले जाना। एक का काम क्या रखेंगे, खाली बार्गेनिंग का, कि आप ट्रांसपोर्ट वालों के साथ जाओगे और रेट की बार्गेनिंग करोगे। तो ये क्या है, ये है समझदारी से पूरे मार्केटिंग सिस्टम को संभालना। अगर सब अलग अलग रहेंगे, आपस में लड़ाई करके रहेंगे, तो सबको, सारे फार्मर्स को ऐसे ही बड़े होलसेलर जो हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन अगर सब मिलके काम करेंगे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में बिलीव करेंगे, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा
बढ़ जाएगी। यूनाइटेड है तो बढ़ेगी ही। क्या पॉइंट है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग in realizing fair prices for farmers products means production is the third aspect of the government initiative. The success of cooperatives in the social and economic landscape of Gujarat and some other parts of the country is the testimony to the role of cooperatives. तो cooperatives कितना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर सकती हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने गुजरात में देखे। लाइक दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कोऑपरेटिव्स का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, पॉपुलरली नोन एज द ऑपरेशन ऑफ व्हाइट फ्लड. The outcome of that cooperative society is Anand Milk Union Limited. Anand A, Milk M, Union U, Limited L, यानी कि अमूल. दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी का इज अमूल. अमूल इज द मर्चेंट इन द मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन in India, in New Zealand, in Australia, in some other countries as well. So like that cooperative, we can also build a small cooperative for different crops. और अगर ठीक से मैनेजमेंट की जाए तो कभी कोई किसी फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. अंडर दिस सिस्टम farmers get together and form marketing societies to sell the produce collectively and take benefit of collective bargaining. कि वो आपस में मिले, अपनी खुद मार्केटिंग सोसाइटी बनाए और कलेक्टिवली उसको बेचें और उस कलेक्टिव बार्गेनिंग का फायदा उठाएं. कैसे? बाय सेलिंग देम एट अ बेटर प्राइस. तो यूनिटी की अपनी एक अलग एडवांटेज होती है, एक अलग प्लस पॉइंट आपको मिलता है. फार्मिंग के केस में वो प्लस पॉइंट क्या होगा? हायर रेट्स. देन हाउएवर ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक between marketing and processing, cooperatives and lack of finance, cooperatives have received a setback during the recent past. कि क्योंकि इन cooperatives के पास sufficient funds नहीं होते, ये अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि फंड्स की कमी होती है. अगर इनके पास प्रॉपर फंड्स हो, वही कि इनके एरिया में एक अच्छा रीजनल रूरल बैंक हो जो आसानी से लोन दे और ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनने में, खड़ा होने में, एस्टेब्लिश होने में हेल्प करे, तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक की जा सकती हैं. इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? दैट इज द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अ वेरी पॉपुलर नेम. व्हाट इज दिस MSP? MSP is basically, guys, the price which is set by the government above the equilibrium price in order to the safeguard of the farmers. यानी कि फार्मर्स के भले के लिए, उनके फायदे के लिए जब सरकार ने एक ऐसा दाम जो कि मार्केट में चल रहे दाम से ज्यादा है, एक इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा है, जब सेट कर देती है तो उसे आप नाम देते हैं MSP. MSP का फायदा
कि जो फार्मर्स है उसके पास एक राइट आ जाता है कि हां मेरी क्रॉप तो अब कम से कम इस दाम पे बिकेगी, मिनिमम, और वो मार्केट में, ओपन मार्केट में उस दाम से ऊपर की ही डिमांड करेगा। कि जैसे एक टमाटो सेलर है, एक फार्मर है जो टमाटोज उगाता है, सरकार ने एमएसपी लॉन्च किया 10 रुपीज पर केजी। अब उसको इस चीज की एश्योरेंस है कि मेरे टमाटर कम से कम अब 10 रुपए किलो में तो बिकेंगे, कम से कम। एमएसपी का कंसेप्ट यह है कि अगर इस रेट पर कोई आपसे मार्केट में ना परचेज कर रहा हो तो आके गवर्नमेंट को आप उस रेट में बेच सकते हैं। अब एक फार्मर ओपन मार्केट में जाके क्या बोलेगा कि 10 रुपए तो सरकार देने के लिए तैयार है, आप बताइए मेरे को कितना एक्स्ट्रा देंगे। मार्केट में भी तो लोगों को परचेज करना ही है। सो they have to offer a price more than ₹10, which is the MSP. So it is an important step initiated by government to give assurance of minimum support price for agricultural products. तो सबसे कम दाम मींस एक जो मिनिमम दाम है जो मिलना चाहिए एक प्रोड्यूसर को, जो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है। द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू एनकरेज फार्मर्स टू सेल द प्रोड्यूस। अब ये एनकरेज करता है फार्मर्स को कि आप अपना सामान बेचें और प्रोड्यूस करें, क्योंकि अब एक फार्मर सीधा क्या करेगा, मैंने जितनी भी क्वांटिटी उगाई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, जो कि मेरा एमएसपी है एग्जांपल के तौर पे। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा अर्निंग्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट बाइज एक्सेस सप्लाई मींस द अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम द फार्मर्स एंड मेंटेन्स बफर स्टॉक। आई होप कि आपने वाली टर्म पहले सुनी है। सरकार ने अगर एमएसपी दिया है तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होते होंगे जो जाके उस एमएसपी पे सेल कर देते होंगे, बेच देते होंगे अपने सामान को, और गवर्नमेंट को उसे परचेज करना पड़ता है। गवर्नमेंट उस सामान का क्या करती है, उन परचेज्ड क्रॉप्स का क्या करती है, उसे रखती है अपने बफर स्टॉक में। अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स को बफर स्टॉक का कंसेप्ट ना क्लियर हो तो बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास जमा हुआ स्टॉक होता है जिसे गवर्नमेंट सबसे पहले इस्तेमाल करती है राशन शॉप्स पे, गवर्नमेंट की चल रही स्कीम्स जैसे मिड डे मील स्कीम उस जगहों पे, और साथ साथ कि अगर कहीं पर किसी सामान की शॉर्टेज है वहां पर सप्लाई करने में। Buffer stock of these product and uses during the emergencies, जहां पर जरूरत पड़ती है। Then the FCI means Food Corporation of India purchases food grains at the procurement prices. Food grains खरीदती है procurement price पे in order to maintain rational prices for the farmers. कि एक प्राइस मेंटेन रहे, टू गिव देम द सफिशिएंट इंसेंटिव। सो एफसीआई प्रोक्योरमेंट प्राइस पर खरीदती है ताकि मार्केट में एक प्राइस बना रहे और फार्मर्स का एक सफिशिएंट इंसेंटिव भी बना रहे। दिस प्रोक्योरमेंट प्राइस इज यू कैन रिलेट विद द एमएसपी ओनली। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल। ये भी हमारे मार्केटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें हम ग्रेडिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आपको पता है कि सब्जियों के, फ्रूट्स के अपने अलग अलग क्वालिटी के लेवल्स होते हैं। कोई साइज में छोटा होता है, कोई न्यूट्रिशन में ज्यादा रिच होता है,
किसी का कलर डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से भी रेट वेरी कर जाते हैं, साइज से रेट वेरी कर जाते हैं। तो ये क्या है, ग्रेडिंग। आपने भी देखा होगा बहुत सारी सब्जियों के, बहुत सारे फ्रूट्स के अपने अलग अलग कैटेगरी होते हैं, उन कैटेगरी के हिसाब से उनके रेट्स होते हैं, और वही उनकी ग्रेडिंग क्वालिटी को भी डिफरेंट कर देती है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग aims at promoting standardization and grading of products to provide them uniformity। कि यही एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एम होता है कि हम एक स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ावा दें, ग्रेडिंग को बढ़ावा दें, जिसकी वजह से क्या कि यूनिफॉर्मिटी आए। ये ना हो कि बहुत वेरिएशंस हैं, कि अगर एक पर्टिकुलर तरह की एक कोई वेजिटेबल है तो उस कैटेगरी के वेजिटेबल के रेट्स में यूनिफॉर्मिटी रहे, ये नहीं कि बहुत वेरिएशंस हो। एंड देन कॉम्पिटिटिव, और उनके बीच में अपना एक कंपटीशन बना भी रहे। इट हेल्प्स फार्मर्स टू फेच रीजनेबल प्राइजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। कि अगर कोई फार्मर अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल या फ्रूट या कुछ और बेच रहा है तो ग्रेडिंग की वजह से, अच्छी क्वालिटी की वजह से उसको रेट भी अच्छा मिले, कि ये मैं एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूं तो रेट भी मेरे को वैसा ही मिले। इट ऑल्सो हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड एज गुड्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। कि जो अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, और उनकी इसी अच्छी क्वालिटी की वजह से फार्मर्स को अच्छे दाम उसके मिलते हैं, और इसकी वजह से अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स की अर्निंग्स भी अच्छी होती है। तो ये ग्रेडिंग और क्वालिटी कंट्रोल भी हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके लिए वेयर हाउसेस का होना बहुत जरूरी है। अगर वेयर हाउसेस नहीं होंगे तो कहां पर ये सारी ग्रेडिंग की जाएगी? कहीं पर तो ये वाली ग्रेडिंग होनी चाहिए, और ये सिर्फ बड़े वेयर हाउसेस में ही पॉसिबल है। ओपन लैंड्स में शायद ये पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि सब्जियां खराब हो जाती हैं। देन डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का फैलाव। इंफॉर्मेशन कहां तक जाती है? अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन फार्मर्स के बीच में या एग्रीकल्चर इस पूरे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व लोगों तक ना पहुंचे तो क्या होगा? सिर्फ एक चीज, वो है किसी ना किसी की एक्सप्लॉयटेशन। अगर इंफॉर्मेशन ठीक से पास ऑन ना की जाए तो दिस रेफर्स टू स्प्रेड, लेट्स चेंज द कलर गाइस, इट्स क्वाइट डार्क। Yeah, this refers to spread of market related information, कि ये हम मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, टू द फार्मर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। कि किसी ना किसी तरीके की सोर्स से हम यहां पर इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ठीक से इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, प्रॉपरली उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर फार्मर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, वो आराम से एक्सप्लॉयट हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इट हेल्प्स फार्मर्स in taking decisions as what to produce, how much to produce, when and where to sell, etc. तो फार्मर्स पूरे अवेयर रहेंगे मार्केट के प्राइस के बारे में, कंडीशन के बारे में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के बारे में, कहां पर बेचना है, कितने में बेचना है, कितनी क्वांटिटी में बेचना है, उन्हें पूरी अगर इंफॉर्मेशन होगी तो इस चीज का वो डिसीजन सोच समझ के ले पाएंगे। देन spread of market information
will help farmers getting fair prices for their production. यही अगर मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, आगे स्प्रेड की जाती है, तो फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, उनको 100% एक अच्छा फेयर प्राइस मिलेगा. So in the next video we'll talk about the problems of agriculture marketing in India. Till now we are done with the non-institutional sources of credit and the measures initiated by the government in order to improve the agriculture marketing system. So आज की वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमने पढ़ी, जिसको रिवाइज आपको करना पड़ेगा गाइस, उसके बिना काम नहीं चलेगा. मैं हर वीडियो में बोलता हूं रिवीजन इज कंपल्सरी, सो डू रिवाइज इट. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, स्टडी हार्ड, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विल कम बैक सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.